Because manifests differently in each child. It is different in different individuals. Each child has different symptoms, and that is why it is called a spectrum. So today we have the privilege of having Dr. Sonali, who is an expert in autism. I would like to read her profile with all of you. Hold your breaths. इनकी प्रोफाइल आप मेरे हाथ में कागज देख सकते हैं, 5 पेजेस की प्रोफाइल है एंड शी इज such an inspiration. So when I say hold your breath, it is actually very inspirational to know her. So she is basically Dr. Sonali Kataria. She reflects a comprehensive blend of medical expertise, educational qualification, and a deep commitment to social causes, particularly in the domain of autism awareness and empowerment. Her extensive experience and accolades underscore her leadership in the field of special education and advocacy. She is the head of special school called Sunrise Learning, a medical doctor, a fellow in pediatrics with 18 years of experience in the field of neuroscience and autism. She is of course, autism specialist, an ex-consultant at AIMS. She is a parent of a 14-year-old on autism spectrum. So we generally believe that people who have autistic children, they step back and they don't do anything. But she is a super mom who is an example for all the mothers. I think that nothing can stop you if you actually believe that you can do. Head of Sunrise Learning Foundation. She is a consultant at AIMS and MAMC, that is Maulana Azad Medical College. She is a visiting faculty at Department of Cell Biology, University of Melbourne, Australia. She is MBBS, of course, from LLRM Medical College, Meerut. MD in Neuroanatomy, AIMS, New Delhi. She is DNB, I don't know the full form, but Neuroanatomy. Postgraduate Diploma in Education Administration, Symbiosis, Pune. Sunrise Program. So her foundation is called Sunrise, but there is a Sunrise Program, Autism Treatment Center of America, MA in that program, and USA. Teacher training in special education from American ESOL Institute. Various certifications in autism specialization, play therapy, and Kalka Dental College, Meerut. She is a visiting faculty, Department of Cell Biology, University of Melbourne, Australia. Junior resident, Department of Obstetrics and Gynecology, ESI Hospital. Internship, she has done internship at SPVP Hospital, LLRM Medical College. Award for Best School for Children with Special Needs in Uttar Pradesh 2023, which she recently got last year. She is Women Face of the Year, Fox Story India. Featured as 50 most inspiring women in March 2023. We are so privileged to have her with us. She has got Women Leadership Award in 2022, KTK Foundation Education Excellence Award in 2022, Isha Gaurav Puraskar 2021, National School Award 2021. Are you all counting? It's a huge list. Forever Star Awards. She is the Superwoman of the Year 2020. TNI Achievers Awards to 2018. Every year I think she gets at least 2 awards, right? 19th Stree Shakti Award 2018. Well, the list is very long and will not be able to, I think, start the session if I go on and on. It's very huge. Indeed a privilege that we have come across such an expert in the field, and we are going to have a session on autism awareness today. Thank you, and thank you to everyone. This is my honor to be speaking to so many teacher mentors. Wow. Teacher in itself is such a salutable profession, and here we are speaking to mentors of teachers. So if you are a teacher of teachers, if you are a parent teacher, if you are a parent's teacher, if you are a teacher of students, जो कुछ भी है, teachers are salutable. And this is my salute to all of us. To all of us together. Okay, awesome. So, congratulations for being that extraordinary teacher
who puts out one extra effort each day to become a change maker for the change that we are all waiting to see in our schools and classrooms. We are all waiting and seeking that change. So you are taking that step, one step each day to be that change. Congratulations. Please clap for yourself first. All right. So, yes, I have to face that side. So it's 2nd April and it's Autism Awareness Day. It's called World Autism Awareness Day. बहुत जोर शोर से ये डे सेलिब्रेट होता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है। Autistic people are out there, out here and out everywhere. Is it a big deal? Yes, it is a very big deal. Latest CDC survey says 1 in 36 people are on the autism spectrum, and one in 44 people are on the autism spectrum, and 1 in 36 children are on the autism spectrum. आप सोचिए हर 36 लोगों में से, बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है. There is an elephant in the room. We can't ignore it. So yes, we better celebrate Autism Awareness Day, and we better take autism awareness very, very seriously. They deserve all the education in the world. They deserve all the jobs in the world. They deserve every possible place in this world. And so we have to understand autism. And like I always say, understanding is always based on a perspective. हमेशा कोई ना कोई पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं किसी चीज़ को. हम एज एजुकेटर्स समझ सकते हैं, हम एज प्रोफेशनल्स समझ सकते हैं, एज पेरेंट्स समझ सकते हैं. और एक ट्रायड है बहुत कॉमनली जो हम ऑटिज्म के लिए यूज़ करते हैं. एक ट्रायड है जिसमें एक तरफ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स जो ऑटिज्म को समझते हैं, जानते हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चे को देखते हैं, उसके साथ जीते हैं, जो ऑटिज्म की एक ज़िंदगी जीते हैं. एंड माई सन इज़ नाउ 15 years old. मैम ने जो CV पढ़ा था वो शायद थोड़ा पुराना था. सो थैंक यू सो मच. एंड एक पर्सपेक्टिव हमेशा ही छूट जाता है क्योंकि वो ऑटिस्टिक इंसान बता नहीं पाता कि मुझे क्या लगता है कि ऑटिज्म कैसा है. वो होता है उस बच्चे का पर्सपेक्टिव, वो छूट जाता है. बट आज हम एज एजुकेटर्स, एज टीचर्स इस सेशन को करने आए हैं, तो हो सकता है आज हम बच्चे का पर्सपेक्टिव इतना डीप में ना समझें, बट एज टीचर्स, एज पीपल हु आर लुकिंग एट ऑटिज्म इन अ क्लासरूम और इन अ स्कूल एनवायरनमेंट, हम जरूर ऑटिज्म को समझेंगे इन अ बिट मोर डिटेल. सो सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट एंड अ फेलो इन पीडियाट्रिक्स. इस जर्नी से लेकर फाउंडर सनराइज लर्निंग फाउंडेशन, ये जो पूरी जर्नी है, इसमें एक छोटी सी कहानी है. कहानी ये है कि जब मैं अपनी MD कर रही थी एम्स में, एम्स न्यू दिल्ली से, उसके बाद 3 साल की एक सीनियर रेजिडेंसी होती है. उस 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी में मुझे मेरे गाइड ने बोला कि ऑटिज्म एक सब्जेक्ट है, इस पे आपको एक प्रोजेक्ट है मिला है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में जाना है. तो मैंने बोला मैम मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑटिज्म में, आप मुझे कोई क्लिनिकल सब्जेक्ट यहीं पे दे दीजिए. आई वांट टू स्टे हियर इन एम्स. सो शी सेड कि अगर तुम्हारे जैसे लोग भी ऐसे छोड़ देंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है, यू शुड गो. तो ऐसे ठीक है, चलो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जाना है, मेरा ब्रदर भी रहता है वहाँ, आई विल गो एंड स्टे देयर. सो आई वेंट देयर एंड आई कंप्लीटेड my fellowship in autism from the University of Melbourne in 2008. And when I came back in 2009, I conceived after that, and in 8 I came back, and then 9 May, Purab was born. Purab is my elder son, who's now 15 years old. When Purab was born, he was diagnosed with autism the very next year. So, उनके जो red flags थे वो मैं देख पा रही थी. उनकी एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन में मैं जाके पीडियाट्रिशियन से समझा रही थी कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है. एंड दे वर लाइक, सोनाली तुम ज्यादा पढ़ती हो, तुम ज्यादा सोचती हो, तुम तो बचपन से ही गोल्ड मेडलिस्ट हो, छोड़ दो, यू आर थिंकिंग टू मच एंड सो ऑन. सो वो मेरी बात समझ नहीं पाए, बट दोज रेड फ्लैग्स डिड कम अलाइव एंड माय चाइल्ड वाज डायग्नोज्ड with autism when he was 14 months old, approximately 14 to 16 months old. So ये जो कहानी है वो ये है कि उस दौरान एज
as soon as my second child was born, I got the opportunity to go and attend a sunrise program from the USA, from the Autism Treatment Center of America. I was deeply inspired by that program, and my younger one was just 9 months old. मैंने अपनी मदर को बुलाया, ऐसे मुझे जाना है 1 वीक के लिए 2 बार जाना है, आप प्लीज मेरे को सपोर्ट करो. एंड शी सेड यस, आई एम हियर विद बोथ योर चिल्ड्रन, यू गो. एंड इससे पहले आई डन so many certifications, so many trainings. I was an autism specialist, I was a fellow in autism. I thought I knew everything about autism और क्या ही सीख लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों एक calling थी. I wanted to go and attend it as a parent. It was a parents program. So it was calling the parents of autistic children to come and attend it. And I don't know why I went there. And that was the turning point of my life. That was my turning point. When I completed the Sunrise program in the USA. उस program ने मुझे अपने अंदर की माँ से मिलवाया. मुझे ये बताया कि जो कुछ भी है, whatever, he doesn't look at you, he doesn't call you mama, he doesn't come to you when you call him. Whatever he is your rock star, and he'll become what you believe that he can become. You can accept him. You can accept him with all that he is today, not for what you want him to become one day. वो जो आज है, जैसा है, अगर तुम उसे unconditionally accept करते हो, तब वो true motherhood है, true love है, and that changed me completely in and out, and that started the momentum in me, which is called the Sunrise Learning Foundation. So जो कुछ भी है, I am a 2 times TEDx speaker. I have whatever number of degrees जो अभी भावना जी ने बोली, इतनी सारी 5 पेज की, उनके कोई मायने नहीं है. My greatest qualification is this: I am a mother to 2 beautiful boys, 15-year-old and 10-year-old, Purav and Yuvraj. And my 3rd baby is Sunrise Learning, which is turning 10 this year. So ये जो change making का process है, जिसका हिस्सा आज हम सब लोग बनने आए हैं, I'm really surprised, by the way. You've been listening to talks since morning, and look at all of ये जो change making का process का हिस्सा हम सब लोग बन रहे हैं on this very very special day, which is World Autism Awareness Day. उसकी यही लड़ी है, awareness से क्या बढ़ती है, understanding से क्या बढ़ सकती है, acceptance. तुम जो हो, जैसे हो, मैं तुम्हें अपनी क्लास में accept करता हूँ, without ifs and buts. You are my class, you are my student. तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बेस्ट निकालने में तुम्हारी हेल्प करूँगा. That's acceptance, and that's inclusion too. When you prepare the rest of the class also, कि चलो इसको मिलके include करेंगे, ये भी इसी क्लास का हिस्सा है, that's inclusion. So here are some दिग्गज personalities जो हमारे बीच हैं, हमारी जान पहचान की हैं. One is Akshay Bhatnagar. He has broken all records of history by becoming the first autistic to be selected in the Rajasthan Secretariat. Just to understand autism. और उसके बीच में हम कुछ मिथ को बस्ट करेंगे. एक होती है कि जब भी हम ऑटिज्म की बात करें या किसी भी डाइवर्सिटी की बात करें, तो हम यूजुअली कितनी स्ट्रगल होगी इनकी ज़िंदगी में, कितनी मुश्किलें आती होंगी, पेरेंट्स ने कितनी तपस्या की होगी, कितना ज़िंदगी डिफ़िकल्ट होगी, ये सोचते हैं. हम बहुत कम सोच पाते हैं कि कितने सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैं, कितनी अकम्पलिशमेंट्स हैं, कितना लंबा प्रोफाइल है इनका, कितनी जगह इनकी फ़ोटो आई है. ऐसा नहीं सोच पाते ना. अब हमें सोचना चाहिए, क्योंकि we have a lot of people who are on the autism spectrum who are creating history back to back. He is Pranab Bakshi model. अगर आप इससे मिलोगे तो all the girls, I promise you, you will have butterflies in your stomach. Cutie pie वाला, वो बिल्कुल वही है, cutie pie. He is Dhruv Tikku. He is an internationally acclaimed artist now on the autism spectrum. इनका पहला exhibition 2018 में Sunrise Learning में हुआ था. हमें नहीं पता था तब कि he is going to be an international icon after that. And look at him now. She is GR Ride. I'm sure बहुत सारे लोगों को पता चला होगा. 36 kilometer stretch, longest swim she has made from Worli Sea Link to some place, Gateway of India. Biggest record-breaking swimmer है ये, and she is on the autism spectrum, and she dedicates all her swims to autism awareness. So
that's G.R. Rai, and he is Akshay Bhatnagar. We've already met him. So all these personalities, these are just 3-4 examples. We have 1 million examples of autistic learners, autistic people who are doing wonders in this world, and they come and categorically tell us, hello, हम अलग हैं, कम नहीं. हम अलग हैं, हम अलग हैं, we are different, Not less. not less. Yeah, they keep telling us. अब थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाते हैं. एक टाइम ऐसा था जब कोई गर्ल चाइल्ड, इंडिया में बहुत सारी जगहों पर जब कोई गर्ल चाइल्ड पैदा होती थी तो बहुत दुख मनाया जाता था. ओहो, लड़की हो गई. अभी भी होंगी, ऐसी बहुत जगहें अभी भी होंगी. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका पोटेंशियल समझ आता गया, लोग उनको उसी नज़र से एक्सेप्ट करते गए जिस नज़र से वो लड़कों को वेलकम करते थे अपने घरों में. सो दैट चेंज टुक टाइम. इट इज स्टिल हैपनिंग. लेकिन आज भी अब अगर कोई बच्चा किसी के घर में विद डिफरेंसेस पैदा होता है, अलग वायरिंग के साथ पैदा होता है, तो दुख मनाया जाता है. ओहो, ये तो बहुत अलग है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा. बिल्कुल वैसा ही दुख जैसा जब लड़की पैदा होती थी तब मनाया जाता था. क्या हम उस सोच से आगे बढ़ गए हैं? यस. क्या हम और आगे बढ़ रहे हैं? यस. तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, जब डिसेबिलिटी को डाइवर्सिटी की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा कि हाँ अलग हैं और वो बहुत अच्छा है. लेकिन एज एजुकेटर्स हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में अगर कोई लोग या बच्चे ऐसे हैं जो अलग तरीके से हंसते हैं, अलग तरीके से खुश होते हैं, अलग तरीके से अपने डर को एक्सप्रेस करते हैं, अलग तरीके से सीखते हैं, और अगर हम उन्हें इंक्लूड नहीं कर पा रहे तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. इट इज डिस्क्रिमिनेशन. We can't say नहीं, which is very difficult, हम नहीं कर पा रहे. We can't say that. They are a part of this class, so we have to include them. तो इसीलिए अभी जो इतना बड़ा गैप है न्यूरो डाइवर्स वर्ल्ड में और टिपिकल मतलब जो टिपिकल तरीके से करते हैं, टिपिकल तरीके से सीखते हैं. डाइवर्स मतलब वो लोग जिनकी वायरिंग अलग है. अभी भी बहुत बड़ा गैप है. अब आपको जो ब्रिज बिल्ड करना है वो आप ही कर सकते हैं. आपकी क्लास के जो बाकी के रेगुलर बच्चे हैं वो खुद से नहीं कर पाएंगे. आप इतने सीनियर मेंटोर्स हैं, आपके अंडर कितने सारे टीचर्स होते होंगे. इफ यू आर स्टार्टिंग दैट चेन ऑफ चेंज, ऑब्वियसली it will translate one day. It will start from the mentors. ये ब्रिज कौन बनाना शुरू करेगा? Building that. So congratulations, आज आपने एक और सीढ़ी बना दी है to create that bridge. और अगर हम चाहते हैं कि हमारे schools, हमारे colleges, हमारे hospitals, I am a member of the Indian Medical Association where we are working fervently to create healthcare systems that are more accessible to people on the autism spectrum, especially to people on the autism spectrum. So उनको वेट करने में मुश्किल होती है, भीड़ वाली जगह पे मुश्किल होती है, तो हम बहुत सारे सेटअप्स बन गए हैं. And on this World Health Day, we have another session at the IMA where we are going to talk about one more change that we are going to bring in the hospitals and the OPD setup. Let's hope and believe that we are going to achieve that. Similarly, in the schools, school एक ऐसी जगह पर है जो हर पेरेंट का सपना होता है कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए और उसे एक्सेप्टेंस मिले. बच्चे को 17 schools of Delhi NCR में एडमिशन नहीं मिला because he was on the severe end of the spectrum. Want more sunrise learnings? No. We want every child to be included and accepted in a school. आप सब लोग, हर पेरेंट की प्रेयर हो, हर पेरेंट की प्रेयर का आंसर हो आप लोग. हम सिर्फ ये प्रे करके वो इतने साल बताते हैं कि इस स्कूल में हो जाए, इस स्कूल में हो जाए, प्लीज 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 कह देना कि हो गया, मेरे बच्चे का हो गया एडमिशन. कितने साल इस प्रेयर में निकल जाते हैं हर पेरेंट के. सो कैन यू इमेजिन what the kind of answer that you are to millions of prayers? Can we put in some more efforts to make this school more inclusive with open arms कि हाँ आओ हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे और तुम्हें स्कूल का हिस्सा बनाएंगे, तुम्हें एडजस्ट कराने में तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे. होगा एक तरफ बहुत माइल्ड ऑटिज्म लाइन मतलब बिल्कुल नॉर्मल जैसा, और दूसरी तरफ बहुत
पुअर फंक्शनिंग होगी तो वो सीवियर ऑटिज्म होगा, और सारी ही स्किल डोमेन्स में बहुत अच्छी फंक्शनिंग होगी तो वो बहुत माइल्ड ऑटिज्म होगा या बॉर्डरलाइन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज कॉल्ड अनइवन स्किल डिस्ट्रीब्यूशन। वो इंसान ऐसा हो सकता है कि वो मैथमेटिकल स्किल्स में बहुत ही अच्छा हो या म्यूजिकल स्किल्स में वंडर्स करता हो, लेकिन सोशल स्किल्स यहाँ आकर उसको 5 मिनट बैठने में हो सकता है बहुत ज्यादा। सो दे आर अनइवन स्किल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। और बच्चे के पर्सपेक्टिव के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, इनका स्पेक्ट्रम लुक्स लाइक दिस। अलग अलग स्किल्स में अलग अलग तरह की फंक्शनल एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और हर इंसान का जो डायग्राम होगा वो बिल्कुल अलग होगा। हर ऑटिस्टिक इंसान का ये डायग्राम बिल्कुल अलग होगा। तो चलिए मिलते हैं भोलू से। भोलू कौन है जी? भोलू हमारी क्लास का एक बच्चा हो सकता है कि वो इनकी क्लास में हो और उसके बहुत चर्चे होते हो, स्टाफ रूम में बहुत बातें होती हो। तो भोलू की एक बार पर्सनल लाइफ में झांक के देखते हैं कि वो भोलू कैसा है और क्या करता है। सो भोलू इज 11 years old और वो बहुत ही एक्टिव है, स्मार्ट है, हैप्पी गो लकी है। हो सकता है ग्रेड 5 में हो सकता है ग्रेड 6 में हो। समटाइम्स ही इज वेरी हाइपर एक्टिव, बहुत कूदता फांगता है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, भागता रहता है, कूदता है, चीजें फेंकता है, क्रैश कर जाता है, हमेशा मूव पे रहता है। उसको मैदान में देखो तो ऐसा लगता है माय गॉड ये रुकेगा कब बच्चा, और स्पेक्ट्रम पे है। ठीक है। सो भोलू जो है ना ज्यादा बोलता नहीं, ही डजंट स्पीक हार्डली एनी वर्ड्स, बहुत कम्युनिकेट बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत अच्छे से नहीं बता पाता कि उसे क्या करना है, क्या चाहिए उसे। पॉइंट भी बहुत कम करता है, हम कहीं पॉइंट कर रहे हैं तो कम देखता है, नाम को जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, भोलू भोलू, और इंस्ट्रक्शंस जल्दी जल्दी फॉलो नहीं कर पाता है। तो उसको एक कंडीशन है कम्युनिकेशन का डेफिसिट इन कम्युनिकेशन है उसको। ठीक है। और क्या करता है, बहुत ज्यादा आंखों में नहीं देखता है, कम देखता है, और बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर पाता है, खुशी भी शेयर नहीं करता, चीजें भी शेयर नहीं कर पाता, जल्दी से एंग्शियस हो जाता है अगर बहुत सारे बच्चे उसके साथ खेलने आ गए तो, बहुत सोशल इवेंट्स में डेंजर असेस नहीं कर पाता। अगर सब लोग एकदम से खड़े हो रहे हैं तो वो अपना खोया हुआ है अपनी दुनिया में, मस्त है, ऐसा लगता है जैसे अपने किसी बबल में, बहुत ही लॉस्ट और डिस्कनेक्टेड है। तो उसको एक डेफिसिट है इन द एरिया ऑफ सोशल इंटरैक्शन, अपने आसपास की एनवायरनमेंट से वो इतना कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारी रेपिटेटिव एक्टिविटीज करता रहता है, लगातार बार बार एक ही तरह का काम, लाइनों में लगाना चीज़ों को, सेंसरी डिसइंटीग्रेशन नाम की एक कंडीशन है उसको। और उसको बहुत सारी विजुअल और ऑडिटरी सीकिंग पसंद है, बहुत जिन्हें बोला जाता है बड़े वियर्ड चीज़ें करता है, पानी को देखता रहेगा खड़े होके, खिड़की के बाहर पत्तों को हिलता हुआ देखता रहेगा, पेजेस पलटता रहेगा किसी बुक के, अपने दुनिया में खोया हुआ, कोई भी एक काम वो बार बार लगातार करता है, जो ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अपनी विजुअल या ऑडिटरी नीड्स के लिए करता हो। टेबल पर टैप टैप करता रहता होगा, कान अपने लगा देता होगा टेबल पे और टैप 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 टैप, पे चढ़ गए तो उतरेंगे ही नहीं, एंड सो ऑन, स्विचेस से खेल रहे हैं तो छोड़ेंगे ही नहीं, एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी उसके ऑब्सेशंस या स्पेशल इंटरेस्ट हो सकते हैं जिनकी वजह से घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और ऐसा लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट बच्चा है भाई, ये तो एंशियस ही रहता है, जब देखो बात बात पे अपसेट हो जाता है। सो दैट्स कॉल्ड डिफिकल्ट, उसको बहुत डिफिकल्ट बोला जाता है क्योंकि उसको लाइट साउंड से प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल एंजाइटी हो सकती है, सेंसरी अवॉइडेंस हो सकती है, बहुत सारी सेंसरी स्टिम्युलाई को हो सकता है वो अवॉइड करता हो, सारी सेंसरी अवॉइडेंस है, वो रात को सोता नहीं है, तो ऑब्वियसली द पेरेंट्स फील डिसगस्टेड, पेरेंट्स की हालत खराब होती है, उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती, ऐसा हो सकता है। ये बहुत सारे फेसेस हैं भोलू की जिंदगी के। सेंसरी अवॉइडेंस की वजह से मॉल और मार्केट में मेल्टडाउन हो जाते हैं, ऑटो से उतरते ही मेल्टडाउन हो जाते हैं, ट्रांजिशन में मेल्टडाउन हो जाते हैं। सो अभी आपको एक झलक मिली, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो, आपके स्कूल्स के टीचर्स की क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो और वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर आपसे बोले, सो यू प्रोबेबली हैव अ लिटिल आइडिया कि हाँ ओके हो सकता है बच्चा स्पेक्ट्रम पे हो। So there are some eye-opening facts about autism. Eye-opening facts कि हाँ ये big deal है। 1 in 44 people according to CDC survey 2020. Most of the children go undiagnosed till the age of say 13, 14, 15, 16, even in adulthood. अभी एक recent सर्वे हुआ जिसमें बहुत सारे adults को colleges में सर्वे कराया गया
उसमें हर क्लास में बहुत सारे यंगस्टर्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे निकले। उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट और एक्नॉलेज किया कि हाँ, मुझे बिल्कुल पूरी तरह से विश्वास हो गया इस सर्वे को करके कि हाँ, मैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हूँ, लेकिन माइल्ड एंड पे था, इसलिए पता नहीं चल पाया। मैंने कोप किया, सारी ज़िंदगी मैं यही सोचता रहा, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इन चीज़ों से परेशान हूँ। अब जब समझ में आ गया कि हाँ, मुझे ऑटिज्म है, तो आई एम फीलिंग मच बेटर। दैट डिस्क्लोजर इज हेल्पिंग मी। So yes, approximately 18 million people जो कि diagnosed हैं already with autism and many who go unreported. Children with autism grow up to become adults with autism. ये बहुत बड़ा एक myth है कि बच्चे ठीक हो जाएंगे बड़े होकर. Autism is autism. That is a brain wiring. That's the way how I am. ये मेरी personality है. So they grow up to become adults with autism. और ये एक स्पेक्ट्रम होता है, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला होता है जिसके अंदर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स आते हैं, एस्पर्जर सिंड्रोम आता है। एस्पर्जर सिंड्रोम से कोई मूवी याद आती है? माय नेम इज खान, दैट्स राइट। पीडीडी नॉस करके एक कंडीशन होती है, वो इसके अंदर आती है। और सीडीडी इज अ रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ ऑटिज्म की 2-2.5 साल तक बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा था एंड देन द रिग्रेशन हैपेंस, दैट्स सीडीडी। ये सब कुछ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम अम्ब्रेला के अंदर आते हैं और इसमें इतनी वाइड वेरिएशन होती है, इतनी वाइड कि इसलिए इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और हर इंसान बिल्कुल यूनिक है। आपने अगर एक ऑटिस्टिक इंसान से आप मिले हो तो आप एक ऑटिस्टिक इंसान से मिले हो एंड दैट्स इट, फिनिश। हु इज अफेक्टेड? ज़्यादातर बॉयज अफेक्टेड होते हैं, 4 से 5 टाइम्स ज़्यादा बॉयज अफेक्टेड होते हैं। कैसे होता है ऑटिज्म? इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल, इसकी इटियोलॉजी होती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यूजुअली एक जेनेटिक चेंज होता है जो एनवायरमेंटल स्टिम्युलेशन से या नॉन स्टिम्युलेशन से वो जीन मैनिफेस्ट कर जाती है। आप, मैं, बहुत सारे लोग हम कैंसर की जीन्स लेके घूम रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम सबको कैंसर डायग्नोज हो। वो कैंसर की जीन मैनिफेस्ट तब हो जाती है जब वो एनवायरमेंटल स्टिम्युलेंट्स, वो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स ने वो उसको एक्टिवेट कर दिया, उस जीन को, राइट? सो सिमिलरली विद ऑटिज्म, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू प्ले अ रोल। Any thoughts on this? He is said to be on the autism spectrum because of all the traits that he shows. किसी ने मूवी देखी है स्टीव जॉब्स? देखी होगी? Okay, I thought it's a nice version. He is Dr. Kerry Magro. He is an award-winning autistic speaker, and I met him last year at the Dubai International Conference. इसी टाइम पर थी, Autism Awareness Month में थी, and I was a speaker there, a huge honor. And Dr. Kerry Magro is one autistic person who has described his childhood in great detail in many of his books. उनकी वजह से, he is one of those young people जिनकी वजह से लोग ऑटिज्म को और डीपली समझ पाए। When an autistic explains, a person who is speaking on the stage and a person who is writing books that are so powerful, कि इतनी deep insights मिल पाती हैं कि इनको कैसा फील होता था और अभी भी कैसा फील होता है। लेकिन उन्होंने क्या सीख लिया है? इन्होंने सीख लिया है कोपिंग स्ट्रैटेजीज। कोपिंग मतलब अपनी उन सारी लिमिटेशंस और बैरियर्स या डिफरेंसेस के साथ कोप करने के तरीके सीख लिए और बना लिए वो स्ट्रैटेजीज। अब वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू ही इज सर्वाइविंग, एंड नॉट जस्ट सर्वाइविंग, ही इज थ्राइविंग। ही इज अ phenomenon in the world of autism, and so could be Bill Gates. So ये है टेम्पल ग्रैंडन। Anyone just raise your hand अगर हम टेम्पल ग्रैंडन को थोड़ा भी जानते हैं। She is Dr. Temple Grandin. She is an emeritus professor in the University of Colorado, a very senior professor. इन्होंने एनिमल साइंसेज में PhD की है। इनकी बहुत ज़बरदस्त बुक्स की लिस्ट है that she has published. She is a powerful speaker for animal rights and for autism. You know why? She is autistic and not on the mild end of the spectrum. You Google her and hear her talks, आपको उनकी बात करने के तरीके से समझ आएगा कि ओहो, she is pretty much on the spectrum, not borderline, not mild. इनके ऊपर एक मूवी बनी है, It
पर्दे में. If you watch that movie, I can give it to you in writing कि आप रो पड़ोगे. What she has gone through and how she has grown up. She was a non-verbal autistic till 4 years approximately, 4.5, 5 years. And उन्होंने अपनी frustration को ऐसे describe किया कि मेरा मन करता था कि मैं चीखे मारूं जोर से क्योंकि मुझे शब्द आते नहीं थे बताने जैसा मैं feel कर रही हूँ. But a very intelligent person, an intelligent person. So जब हम किसी autistic से मिलते हैं, non-verbal autistic से, generally ऐसा सोच सकते हैं टीचर्स कि शायद उसके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं क्योंकि वो कह नहीं रहे. बस ये नहीं सोचना है. Because we are not ordinary teachers, we are extraordinary teachers. And that extra, वो जो extra लगा हुआ है ना, वो है हमारा lifetime achievement award. अगर एक बच्चे को भी हमने उसकी पूरी diversity के साथ समझ लिया और उसकी non-verbal expression को भी जान लिया, then that's what we call as being extraordinary. So कुछ signs and symptoms होते हैं. Difficulties, communication में difficulties and repetitive behaviors होना, साथ में sensory integration में problems होना is considered to be conclusively diagnostic for autism spectrum. We can diagnose. और इनके कुछ levels बहुत सारे तरीकों से, जिनको बहुत ज़्यादा support चाहिए वो level 3 कहलाता है, जिनको ठीक ठाक support चाहिए वो 2 और जिनको थोड़ा सा support चाहिए वो level 1. और इस पूरे ऑटिज्म को समझने के लिए 3 थ्योरीज हैं जो आई क्विकली. वन इज द थ्योरी ऑफ माइंड. सुना होगा थ्योरी ऑफ माइंड, सेंट्रल कोहेरेंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. ये 3 एरियाज में वीकनेस, कमी, डेफिसिट्स होना की वजह से जो मैनिफेस्ट होता है ब्रेन की वायरिंग, उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से एक्सप्लेन किया जाता है. इन तीनों थ्योरीज से एक्सप्लेन किया जाता है. हाउ डू आई मूव इट फॉरवर्ड, You can do the expression से मैं जल्दी से समझ पाऊँ कि हो सकता है कोई बोर हो रहा हो, कोई यॉन कर रहा हो, तो मैं बिल्कुल समझ जाऊँ कि आई बेटर चेंज माई गियर और मैं जल्दी से कुछ एक्साइटिंग, कुछ इंटरेस्टिंग कर दूँ. कोई म्यूजिक चला दे तो मैं डांस कर दूँ, लेकिन सोना मत, प्लीज सोना मत. सो आई नो, आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव दैट एम्पैथी. मेरी थ्योरी ऑफ माइंड फंक्शनिंग है और मैं जान पा रही हूँ कि किसी को नींद आ रही है और उनका मन कर रहा है कि वो यहाँ से भाग जाएं या हम कुछ और इंटरेस्टिंग करें. बट वो जो थ्योरी ऑफ माइंड होती है ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स में, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली फंक्शनिंग नहीं हो सकती. अगर कोई ऑटिस्टिक इंसान यहाँ पर गाना गा रहा है और आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली बोल भी नहीं रहे हो, लेकिन वो चुप नहीं करेगा, उसको नहीं पता चल पाएगा कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है. मुझे चल जाएगा पर मैं ये बीच में नहीं छोड़ने वाली है टॉक. Whatever happens, I am going to get through this. Even if you stop my slides, even then I am going to go on. Because today is Autism Awareness Day. आज यहाँ से सारे एजुकेटर और मेंटर्स ये जान के जाएंगे कि जितने बच्चे उनके स्कूल्स में हैं, चाहे वो डिफरेंट हैं, टेढ़ा है पर टेढ़ा है पर they are concrete learners. पत्थर की लकीर. आप बताओगे कि this is a rule, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो उनको समझ में आएगा. लेकिन अगर आपने सोचा कि यार ये तो understood है यार, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा नहीं. What is understood? तुमने बताया ही नहीं था. So nothing is understood. वो जो unsaid, hidden social rules होते हैं हमारी दुनिया के, वो उनको समझ में नहीं आते हैं. आपको ब्लैक एंड व्हाइट में रूल्स देने पड़ेंगे, सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझाना पड़ेगा. अगर वो अंदर यहाँ आए हैं और वो देख रहे हैं कि इतने सारे लोग चुपचाप बैठे हैं, वो एकदम से कोई और जना होगा तो समझ जाएगा कि उसका मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई लेक्चर टाइप का कुछ चल रहा है. बट उनको आपको बताना पड़ेगा कि लिसन, अंदर वी हैव टू स्टे क्वाइट, इट इज क्वाइट प्लेस है, वो बताना पड़ेगा. सो सोशल कॉन्टेक्ट को समझना, जल्दी से 2+2 ऐड करके बिग पिक्चर को समझ जाना, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल कोहेरेंस. वो सेंट्रल कोहेरेंस वीक होती है. एंड द थर्ड थ्योरी इज, नहीं, आई विल गो ऑन. ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में वीक है. एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब होता है हम जैसे कोई भी काम करते हैं, डेली लाइफ में कोई भी हम काम करते हैं, एक के बाद एक हमें पता है उसकी क्या सीक्वेंस होती है. ब्रश करना है, ब्रश उठाना है, टूथपेस्ट खोलना है, स्क्वीज करना है, लगाना है, सो ऑन. देयर आर सो मेनी स्टेप्स. हम प्लान कर पाते हैं, हम उनको एक के बाद एक सीक्वेंस कर पाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं.
एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में ये नहीं समझ में आता है कि किसके बाद क्या होना है, उनके लिए छोटा सा टास्क जो हमें इजी लगता है वो बहुत मुश्किल हो सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टास्क एनालिसिस करके देना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड टास्क एनालिसिस। एक टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के स्टेप्स बना के अगर उनको देते हैं तब वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। लाइक दैट। सिमिलरली ये मैडम जी रो रही हैं बहुत जोर से, लेकिन ये तो क्राउन पहन रही हैं। बिग पिक्चर, looking at the big picture and making sense of it and then interpreting the entire situation is what is difficult for them. ठीक है? तो अभी ये फेस दिख रहा है कि बहुत गुस्से में है, लेकिन एक्चुअली देखा कि वो तो जीत गए। या ये हमें क्या दिख रहा है? So या अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है? अल्फाबेट बी है, लेकिन यहाँ देखें तो 13 है। So when we look at the big picture, then we know that it is either 13 or B. हम चेंज कर देंगे, बट आप ऑटिस्टिक से पूछोगे अगर उसने इसको B कह दिया तो वो यहाँ भी A B C पढ़ेगा, वो पढ़ेगा 12 B and 14। Getting it? तो वो जल्दी से बिग पिक्चर देख के अपने इंटरप्रिटेशन हो सकता है चेंज ना कर पाए, बिकॉज वीक सेंट्रल कोहेरेंस। ठीक है? बिग पिक्चर जल्दी से हम देखें और हम बोलेंगे क्लाउन का फेस है, लेकिन मेरे 120 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ऑरेंज है, मौसमी है, केचप है, आई लव केचप, मैगी टोमेटो केचप। So they will focus on details and they'll go to what they are fascinated with. So they will not be able to look at the big picture quickly. Thank you so much. Huh? Big picture. इंडिया का मैप दिख रहा है ना, हो सकता है उनको ना दिखे, वो उनको लगेगा आलू टेढ़े रखे हैं, ये ठीक से नहीं रखा। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में थिंकिंग प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो रोजमर्रा की लाइफ में वो स्ट्रगल करते हैं, तो उसकी जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो यही होते हैं कि उनको डिफिकल्टीज होती हैं, दूसरा इंसान क्या सोच रहा होगा, सोशल इमेजिनेशन में, छोटे छोटे काम करने में, सीक्वेंस करने में, जल्दी से शिफ्ट करने में, कि अरे भाई अब चेंज हो गई, अब ये चीज ट्रांजिशन में बहुत मुश्किल होती है, एंग्जाइटी होती है, इसलिए जल्दी सारे चेंजेस उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। वो अपने रिचुअल्स यूज करते हैं। अगर एक रिचुअल है, अगर आप बोलोगे जल्दी चलो यहाँ इमरजेंसी हो गई है, अगर उनका रिचुअल है कि सारा लिटर डस्टबिन में डाल के ही जाएंगे तो वो डाल के ही जाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि भाई साहब इमरजेंसी है, छोड़ दो लिटर, कोई बात नहीं। उनको अभी इतनी जल्दी नहीं समझ में आ सकता। पॉसिबिलिटी है, अलग अलग स्टेजेस पे होंगे सब। सिमिलरली उनके लिए वेटिंग मुश्किल है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग मुश्किल है, पेइंग अटेंशन मुश्किल है, स्टेइंग एक जगह पे मुश्किल है, डिस्टेंस नापना मुश्किल है। अगर आप उनको बोलोगे कि आओ मेरे पास आ जाओ, तो वो हो सकता है आपके बहुत पास आ जाए। वो नहीं समझ पाएंगे कि एक सोशल डिस्टेंस होता है जो दूसरे इंसान से रखना होता है, बिकॉज दैट इज सो अनसेड ना। कभी किसी ने आपने बोला ही नहीं माना हम डिस्टेंस पे रहो, आपने तो कहा ही नहीं, आपने कहा पास आ जाओ, तो मैं आ गया, अब कह रहे हो बहुत पास आ गए तुम। तो उनके लिए ये वेरी डिफिकल्ट है। और बहुत सारे टीचर्स आपके साथ जब डिस्कशन करते होंगे तो एक बहुत बड़ा एजेंडा होगा डिस्कशन का कि बिहेवियर्स, मैम सर बहुत बिहेवियर्स आते हैं बच्चे के, बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग बिहेवियर्स होते हैं। सो एक बार उसका बिहेवियर का न्यूरल पाथवे देखते हैं, व्हाट यू कॉल एज अ बिहेवियर। इनफैक्ट कभी भी हम गुड बिहेवियर को बोलते ही नहीं कि ऑल ऑफ अस आर सिटिंग सो नाइसली इन अ क्लास, दैट इज ऑल्सो बिहेवियर। लेकिन उसको कभी एक्नॉलेजमेंट मिल नहीं पाता ना उस बिहेवियर को। जैसे ही कोई खड़ा हो जाएगा और भागेगा सीढ़ी पे, तब हम बोलेंगे बिहेवियर आ गया। सो हम जो गुड बिहेवियर कर रहे हैं उसको जरूर सेलिब्रेट करें और एक्नॉलेज करें। तो एक बार अपने लिए ताली बजा दें, इतना वाओ फैंटास्टिक। तो जो बिहेवियर का न्यूरल पाथवे होता है वो ऐसे होता है कि इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस, अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं तो हम सबके ग्रीन पाथवेज एक्टिवेटेड हैं, हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है, वी लर्निंग, वी ग्रोइंग, वी डूइंग समथिंग नाइस। एंड देन अचानक से यहाँ पे अगर फायर अलार्म बजने लगेगा तो एक थ्रेट डिटेक्ट होगा, हम सबके ब्रेन में एक थ्रेट डिटेक्ट होगा और हम सबके अंदर कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा? फाइट और फ्लाइट या तो लड़ो या भागो या व्हाटएवर। सो अलार्म बजते ही
हमारा रेड पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज द फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, एवरीबडी नोज। और अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पर बहुत जोर से आग की लपटें जलने लगी, तो सम ऑफ अस माइट गो इनटू पैनिक। कुछ लोग होंगे जिनके रिफ्लेक्सेस काम करने बंद हो जाएंगे, नहीं समझ आएगा कि अब क्या करना है, और हम फ्रीज हो जाएंगे। दैट्स कॉल्ड फ्रीजिंग, राइट? सो कोई फ्लाइट में चला जाता है, कोई फाइट में चला जाता है, और कोई फ्रीज हो जाता है। सो दैट्स व्हेन द ब्लू पाथवे इज एक्टिवेटेड। और सबका अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है, हर इंसान अपने अपने लेवल पे उस टाइम पे एक्ट करेगा, ठीक है? सो अभी एक बार भावना अपने बच्चे के साथ वॉक पे जा रही है पार्क में, मजे से, बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत सुहाना मौसम है, ग्रीन पाथवे एक्टिवेटेड है। अचानक से आ गए महाराज पार्क में, एकदम से सामने आ गए, तो क्या होगा? फाइट और फ्लाइट, ठीक है? फटाफट या तो हम शेर से लड़ेंगे, क्योंकि कम चांसेस है, या भाग जाएंगे, फटाक से हम भाग जाएंगे, ठीक है? नहीं, we can choose, you always have a choice. No. ठीक है, तो हम भाग जाएंगे, और वो हमने रेड पाथवे में हमने चूज कर लिया। अब क्या हुआ? जो कुछ भी उस टाइम आपने किया, जो कुछ भी, आप जब बहुत तेज भागे, क्या आपने जानबूझ के किया था? No, it can't be. It was on a reflex basis. It can't be. When a threat is detected, most of us are not thinking, planning. चलो ऐसा करते हैं कि हम शेर के राइट से निकल जाते हैं, चलो ऐसा करते हैं कि उधर मुंह कर लेते हैं, हमें देख नहीं पाएगा। We can't do that. There is no thinking happening at that time. When a threat is detected, a real threat, then everything that is happening is Involuntary. loudly बोलेंगे Involuntary. अगर हमारी क्लास में उस बच्चे को कोई थ्रेट डिटेक्ट हुआ जो उसके लिए थ्रेट है, और उसने कुछ ऐसा किया कि वो जोर से सीढ़ी पे भागने लगा, क्या उसने वो जानबूझ के किया? कैन वी अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज दैट? उसका रेड पाथवे एक्टिवेट हो गया है। हम सबका रेड पाथवे एक्टिवेट होता है अलग अलग शेरों से। किसी के लिए शेर एक शेर है, किसी के लिए शेर मैन। हेलो एवरीवन, स्टॉप इट, दिस वाज अ शेर फॉर माय चाइल्ड। जोर से बोलना, कोई सामान का गिरना, किसी बच्चे ने अचानक दरवाजा खोल दिया, लाइट चली गई, बेल बज गई रिसेस की, एनीथिंग कैन बी अ शेर। इट इज अ सडन ट्रिगर। या शेर कह रहा है मैं तो तुमसे बात करके ही जाऊंगा। अब वो आ गया यहाँ पर फेस टू फेस, तो हम क्या हो गए? हम फ्रीज हो गए, हमारा शटडाउन हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं? अब क्या ही कर सकते हैं भाई, तू कर दे जो करना है। So that shutdown is basically when the child stops responding. बहुत जोर से टीचर ने डांट दिया और वो मूर्ति बन के खड़ा हो गया। अब वो कुछ नहीं कर रहा है, बहुत देर तक कुछ नहीं कर रहा है, उसका मेल्टडाउन भी नहीं हुआ। Probably the child has frozen. किसी ने बहुत जोर से बुली कर दिया, बहुत कुछ ऐसा हो गया जो उसका नर्वस सिस्टम शट डाउन में चला गया। ज्यादातर जो हमारे लिए शेर है वो उसके शेर से बिल्कुल अलग है। हमें उसके शेर को समझना है, उसके ट्रिगर्स को समझना है, एंड देन वी कैन हेल्प हिम मच बेटर। वो वॉलंटरी नहीं होते तो हम कितने भी कॉन्सिक्वेंसेस सेट कर दें। मैं 5 बार तुमसे बोल रही हूँ उठाओ अपनी बुक, फेंकी क्यों है तुमने, उठाओ, और वो नहीं उठा रहा है, वो मूर्ति बन के खड़ा हुआ है, वो फ्रोजन है, एंड देन वी से उसने मेरी बात नहीं मानी, नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू स्टैंड विद योर आर्म्स अप। अब वो आर्म्स अप भी नहीं कर रहा है या कर भी देता है, सो उसके लिए हमें उसे कॉन्सिक्वेंस नहीं देना है, क्योंकि वो उसने इनवॉलंटरीली किया था ऑफ अ सिंपल बिहेवियर that I could simplify as much as possible. I hope this was helpful. So fear of threat जो होता है ना, जब भी हमें threat का एहसास होता है तब एंजाइटी ज़्यादा होती है और पैनिक का बटन भी दब सकता है। अवॉइड करता है, म्यूजिक सुनना मांगता है, मूवमेंट बार बार मांगता है, ड्रिंक वाटर करता है, बार बार वॉशरूम मांगता है। वो उसकी नीड है, हो सकता है वो वांट ना हो के वो नीड हो। मे बी ही नीड्स मूवमेंट, मे बी ही नीड्स अ ब्रेक, अ फायर ब्रेक वेरी ऑफन। सो इसी को समझने के लिए एक बार अराउजल समझेंगे। अभी जब मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, some of you are absolutely calm, comfortable, looking at me, and optimal arousal है आपका। ना आपको बहुत ज्यादा बोरियत और नींद हो रही है, ना
रेस्टलेस और ऐसे हो रहे हो कि इसका तो मैं सिर ऐसा कुछ नहीं होगा. So you are, some of you are very calm and relaxed and looking at me. Some of you are definitely dipping down in your energy. आपको अगर एक कप चाय मिल जाए, एक ग्लास पानी मिल जाए, थोड़ा सा मूवमेंट मिल जाए, कुछ एंटरटेनमेंट मिल जाए, तो मजा ही आ जाए. Something like that. You know, you're going down. And some of you are very fidgety. इसका तो हो गया, बस हमने खत्म करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा. Like that. You getting restless. ऐसा अच्छा फंक्शनिंग जब हमारी होती है, वो तब होती है जब हम अपने ऑप्टिमल अराउजल में होते हैं. अगर हमारा लो अराउजल हो जाता है, तो हम अपने आप को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं. जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, गर्मी लगी तो तेज कर दिया, वॉल्यूम ज़्यादा लगा तो कम कर दिया. रेगुलेटर होता है ना. सिमिलरली हमारे पास भी अपना रेगुलेटर होता है. जैसे ही हम लो अराउजल, हम खड़े हो गए, हमने स्ट्रेच कर लिया, हमने पानी पी लिया, हम वापस ऑप्टिमल अराउजल में आ गए. जैसे ही हमारा हाई चला गया, फिर से हमने क्या किया? स्ट्रेच किया, डीप ब्रेथ किए, थोड़ा और पानी पिया, मुंह धो लिया, वॉक करके आ गए, फिर से हम ऑप्टिमल अराउजल में आ गए. ऑप्टिमल अराउजल इज समथिंग दैट कीप्स अस गोइंग. ऑटिस्टिक लोगों में ऑप्टिमल अराउजल जैसा बहुत कम मौके मिलते हैं उनको. उनका ब्रेन या तो लो अराउजल में रहता है बार बार, या हाई अराउजल में रहता है. इसलिए उनको बार बार ये सारे रेगुलेशन की स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है. हाई अराउजल रिकमेंडेशंस होते हैं. आई एम श्योर आपके पास भी ये सारे रिकमेंडेशंस होंगे. व्हेन यू आर इन अ क्लास, ऑप्टिमल जोन ऑफ रेगुलेशन में लाने के लिए ब्रीदिंग इज अ वेरी पावरफुल रेगुलेटर. जिसको भी जोर से यौन आ रहा है, नींद आ रही है, वो एक डीप ब्रेथ लेंगे तो वेगस नर्व एक्टिवेट होगी. वही वेगस नर्व जो ओम चैंटिंग से एक्टिवेट होती है, वही वेगस नर्व जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होती है, वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिससे हमारा ग्रीन पाथवे एक्टिवेटेड रहता है. रेड पाथवे इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. भैया भाग लो, भैया लड़ लो. पैरासिम्पैथेटिक इज वेगस नर्व. ओम चैंट करो, डीप ब्रेथ लो, खाना खाओ, रिलैक्स करो, रेस्ट करो. दैट्स द ग्रीन पाथवे. सो ग्रीन पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए कुछ रेगुलेटर्स होते हैं. वन ऑफ देम इज डीप ब्रीथिंग. इट इज अ साइंटिफिक थिंग. देयर इज नथिंग philosophical about it. So breathing, similarly movement is a very powerful regulator. छोटी सी walk करी and you feel much better. Similarly pressure is a very powerful regulator. pressure का मतलब जिन बच्चों को बहुत मुश्किल हो रही है बैठने में, उनकी गोदी में हम एक भारी बैग रख देते हैं. लैप पैड्स आते हैं जो रख सकते हो, भारी कुशन होते हैं. उनके सिर पे कभी टाइट कैप बांध देते हैं. उनका एक मैजिकल रेगुलेटर होता है. मैजिकल माउथिंग तो है ही. हम सब लोग कभी भी लो फील करें तो भी कुछ खा लो, गुस्सा आ रहा है तो भी कुछ खा लो, सो वी फील बेटर. वो तो होती है, च्युइंग गम्स होती है. देयर इज सो मच दैट वी कैन डू इन माउथिंग. नाउ अ मैजिकल रेगुलेटर इज वाटर. गुस्सा आ रहा है तो पानी मुंह में डालो, और नींद आ रही है तो पानी पी लो, मुंह धो लो, व्हाटएवर. सो पानी इज अ वेरी पावरफुल रेगुलेटर. हम अपनी क्लासेस में बोल सकते हैं बार पानी पीने के लिए, हर थोड़ी देर में अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए. वाटर इज अ वेरी पावरफुल रेगुलेटर. ब्रीदिंग के बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो बहुत मजे करके हम अपनी क्लास में बीच में करा सकते हैं. अपने टीचर्स को ये सिखा सकते हैं कि आप ये वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यूज करो. वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज मिलती हैं, गूगल पे मिल जाएंगी. बहुत क्यूट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, उनके नाम भी बहुत क्यूट होते हैं. सिमिलरली माउथिंग में हम क्योंकि क्लास में हैं और आपकी क्लासेस में बहुत अलग माहौल होता है, अलग परमिशंस होती हैं, आप हर चीज़ को अलाउ नहीं कर सकते. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू कैन अलाउ इन योर क्लास, यू शुड हैव अ वे ऑफ गिविंग अ माउथ ब्रेक टू द चाइल्ड. तो अगर वो टिफिन ब्रेक के फॉर्म में हो देन ऑल्सो इट्स ओके. सिमिलरली मूवमेंट इन योर क्लास, व्हाटएवर यू कैन अलाउ. बस एक बात याद रखनी होती है टीचर्स को. अक्सर ऐसा होता है कि जब वो बच्चों को रिसोर्स रूम में भेजते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों को कहीं ऐसी जगह भेजते हैं कि जाओ तो थोड़ी देर खेल आओ, तो वो बच्चा जाके ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग करता है. एंड द टीचर फील्स वेरी गुड कि चलो अब ये थोड़ा रेगुलेट हो जाएगा. नो डाउट हो जाएगा. आफ्टर अ वाइल अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रैम्पोलिन पे जंप कर लेगा तो उसकी हाइपर एक्टिविटी और बढ़ी हुई मिलेगी. अब और ज़्यादा एग्रीवेटेड हाइपर एक्टिविटी के साथ वो आएगा, उतरना नहीं चाहेगा, थक चुका होगा. So it is going to be very difficult. तो जो भी करना है बहुत मॉडरेशन में करना होता है विद स्ट्रक्चर. मल्टी सेंसरी लर्निंग से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. ऑटिस्टिक्स की एक बार स्ट्रेंथ्स को ध्यान से देखेंगे. वो स्ट्रेंथ्स जिन्हें हम चैलेंजेस बोल रहे हैं,
वो एक्चुअली किसी के लिए बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ हो सकती है। लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई गॉसिप नहीं करेगा, इधर उधर की बातें नहीं करेगा, ऑफिस आएगा काम करेगा, उसको तो एनवायरनमेंट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सर, लेकिन वो अपनी जॉब पे फोकस रहेगा ना, अच्छी बात है। कौन लड़की नई ज्वाइन करी इसको ऑफिस में, उसको कोई मतलब नहीं है, तो अपना काम करेगा। ही इज फिक्सेटेड विद समथिंग सर, वो तो एक ही चीज पे अटका रहता है। अरे भाई तो उसको वही काम देंगे ना जिसके लिए वो पैशनेट है, हमें और क्या चाहिए, हम उसको वही काम देंगे जिसके लिए वो पैशनेट है। वो तो रेपिटेटिव बिहेवियर करता है सर, एक ही काम करता रहेगा लगातार। हाँ तो हम उसे ऐसे ही काम देंगे ना जो हम बोर हो जाते हैं भाई, वो बोर नहीं होगा, वो एक ही काम लगातार बार बार डेटा एंट्री जैसा काम करता रह सकता है घंटों तक, वो बोर नहीं होगा। हमें और क्या चाहिए सर, वो तो बहुत ही फिक्स थॉट्स और आइडियाज के साथ आता, मुश्किल हो जाएगा, बहुत रिजिड होता है वो तो हाँ भाई, तो वो रूल ओरिएंटेड होगा ना, एक बार उसे एक रूल बता दिया बस, देन वी आर डन, पत्थर की लकीर बन गई, वी विल बी सॉर्टेड। वो कल्चर अच्छा हो जाएगा ऑफिस का, स्कूल का, वो रूल सारे फॉलो करेगा। सर डिटेल ओरिएंटेड होता है, वो उसको बिग पिक्चर समझाना बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं। हम उसको वही काम देंगे जिसमें बहुत एक्यूरेसी चाहिए, फोकस और डिटेल्स चाहिए, हमें चाहिए नहीं बिल्कुल, कोई बात नहीं। वो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर समझ नहीं पाता जल्दी से, तो अच्छी बात है ना। तुम लोग बाकी के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, उसको सरकाज़म समझ नहीं आ रहा, उसको जोक समझ नहीं आ रहे, उसको बुलिंग नहीं पता चल रही, दैट्स ओके, वंडरफुल, हम अभी भी वांट दिस। और वो बहुत पिक्चर्स में सोचते हैं, हाँ अच्छी बात है, विजुअली ओरिएंटेड इंसान ही चाहिए हमें इस जॉब में। ऐसे बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं आज की दुनिया में जो अमेजिंगली यूजफुल हैं इस काम के लिए। तो अब हम जब ऑटिज्म को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, अब हम ये जानने लगे हैं कि हाँ उनकी चैलेंजेस के साथ उनकी वो उनकी हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे स्कूल एनवायरनमेंट में वो अच्छा फिट हो जाए। हम क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं 6 tools of productivity. These are the 6 tools which are magic tools that work wonders to work with students on the autism spectrum. I am specifically talking about students, not patients, not people, students with autism. क्या चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, टाइम का स्ट्रक्चर, स्पेस का स्ट्रक्चर, एक्टिविटी का स्ट्रक्चर। एक होता है विजुअल सपोर्ट, हर चीज़ के लिए विजुअल, सोशल स्टोरीज, रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन, को रेगुलेशन टूल्स एंड कम्युनिकेशन टूल्स। स्ट्रक्चर मतलब क्लियर बिगिनिंग है और ये क्लियर एंड है। जब सबकी टर्न आपकी खत्म हो जाएगी तो ये गेम खत्म हो जाएगा। जो डीजे पे डांस हो रहा है उनको पता ही नहीं कब तक चलता रहेगा, या तो आप पहले बताओ 10 गाने बजेंगे, फिर 10 गानों के बाद डांस खत्म हो जाएगा, देन इट्स ओके। जैसे वेग चीजें आती हैं उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है। तो वी कैन स्ट्रक्चर थिंग्स, ठीक है, हम 3 गेम्स खेलेंगे और 3 गेम्स में 5 सॉन्ग्स होंगे, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। So that makes sense. So ये सब स्पेशल स्कूल में इस तरीके से सिखाया जाता है। Obviously regular schools में it is not possible, so you will have to figure out what can be done in a regular school. But visual supports definitely help them. Predictability helps them. कि आज वो वाली मैम नहीं आई हैं, ये सुबह ही बता दिया गया। तो जो 8th पीरियड वाली जो मैम है वो आज एब्सेंट है, लीव पे, वो अगर सुबह ही बता दिया गया तो 8th पीरियड होगा, उस टाइम पे आप ये कर सकते हो, बाकी सब लोग जो मर्जी। उसकी भी क्लैरिटी देना, पेरेंट को ये बताना कि जी आपकी जब छुट्टी होती है तो भी आप अपना शेड्यूल प्लीज बना लीजिए। दैट विल रियली हेल्प योर चाइल्ड, कीप द चाइल्ड वेरी वेरी क्लियर। अब सिमिलरली सोशल सिचुएशन कैसे सिखाएं, कैसे बताएं कि जब हम वहाँ जाएंगे मूवी थिएटर में तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। हम इस टूल से सब कुछ सिखा सकते हैं, नथिंग इज लेफ्ट टू इमेजिनेशन। जितनी भी चीज़ें हम सोचते हैं कि कैसे सिखाऊं और कैसे कॉन्सेप्ट बताऊं, परसों होगा ऐसा, कैसे सिखाऊं, तो वो चीज़ें विजुअली जब हम करा देते हैं और एक एक चीज़ को विजुअली स्टेप बाय स्टेप उसको समझाते हैं विद पिक्चर्स, विद विजुअल्स, कब जाना है, कब आना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, then it becomes a social story because now it is concrete. The story helps to simplify the most complex social situations which are very difficult to explain to school में 20, 22, 23, 24 साल के ऑटिस्टिक लड़के हैं और वो they really love, जब हमारी रिसेप्शनिस्ट ऊपर जाती है क्लास में, वो बहुत एडमायरिंग आईज से उसको देखते हैं। इन लोगों को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है, मैम ये मानता ही नहीं है कि बार बार दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है, तो मैं क्या करूँ, मैं ना बोलूँ नो डोंट गो आउटसाइड, नहीं आप बोलो कम एंड सिट हियर, कम हियर, आप प्रॉम्प्ट कर दो, रीडायरेक्ट कर दो, हाथ पकड़ के जेंटली रीडायरेक्ट कर दो, बट आप नो मत बोलो। जितनी बार आप नो बोल रहे हो उतनी बारी उसका अराउजल लेवल हाई होता जा रहा है।
वेरी इंपॉर्टेंट रेड एंड ग्रीन लाइट्स. आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो कभी रेड लाइट में कभी ग्रीन लाइट में. हम सब होते हैं पूरे दिन में अलग अलग लाइट्स में. मतलब एट वन टाइम हम बहुत ही इंटरैक्टिव, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं. और ऑपोजिट लेवल हो गया. और देना गलती से कुछ बोल मत देना मुझसे आज गलती से होते हैं. Yes. बिल्कुल ऐसे ही ऑटिस्टिक बच्चे भी होते हैं. फर्क क्या है? फर्क ये है कि ज्यादा रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हो जाता है हमें. ज्यादा ग्रीन वाले जोन बहुत कम आते हैं, कम आ पाते हैं. पाइपर नाम की एक बहुत ही अमेजिंग रिसर्चर हैं जिन्होंने हमें ये जोन्स ऑफ रेगुलेशन दिए हैं. हर वो फीलिंग जो शब्दों में समझाना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, जिसके बारे में अवेयरनेस ही बहुत मुश्किल है. मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है. कितना कैसे दिखाओगे? व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन, व्हाट इज इरिटेशन, क्या कहना चाह रहे हो आप? उन सारी फीलिंग्स को कॉन्क्रीट करने के लिए उन्होंने 4 कलर्स यूज किए, रेड ग्रीन येलो ब्लू, और सारी फीलिंग्स को इन 4 कलर्स में क्लब करके वी हैव बीन फॉलोइंग दीज जोन्स ऑफ ऑटिज्म को समझना शुरू हो चुके हैं. सिर्फ शुरुआत ही हुई है. Okay, so yes, these are some of the books that Temple Grandin has written. A little note about Temple Grandin. Last year, I had gone to International Conference of Autism in Dubai, and she was the keynote speaker over there. So, इनके keynote talk के बाद, the topic was I was the happiness ambassador for autistics, and so my talk was autism and happiness, and she was the keynote speaker, and I was very happy जब मैं पहुंची कि oh मैम का keynote speaker है. And I saw कि मेरा immediately इनके बाद है. तो जैसे ही उनका खत्म हुआ, everybody went on to get selfies with her, but I couldn't go because I had to go and set up my thing over there. अगर मैं यहाँ भीड़ में खड़ी होती तो मेरा तो वो start होना था वहाँ पर. So I lost that opportunity of getting click with her. जो मैंने डॉक्टर केरी के साथ किया, मैं टेम्पल ग्रैंडिन के साथ फोटो नहीं खिंचा पाई, and I'm going to miss that opportunity all my life. But what an honor it was! What an honor to be on the same stage जहाँ से वो कीनोट लेक्चर देके उतरी हैं. I want all of you to please hear her talks if you want to understand about autism. और इतना भी फूलों वाला नगरी नहीं है. It is not like a bed of roses. Autism के साथ रहना और जीना. He's my son Pura. He is 15 years old. He is district level roller skating champion. लेकिन बहुत अच्छी रोलर स्केटिंग करता है. आंधी तूफान की तरह स्केटिंग करता है. फर्स्ट आता है, गोल्ड मेडल्स लाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ चुका है. लेकिन जितनी बार कोच सीटी बजाता है, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, जैसे ही वो सीटी बजती है वो अपने कान बंद करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको उस आवाज से बहुत ज्यादा दिक्कत है. तो हो जाए, कोई और तरीका बना लें, आप झंडा फहरा दें, आप क्लैप कर लें, कुछ और कर लें. कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते कई जगह पे. तो बहुत सारी चैंपियनशिप से वो ऐसे ही बाहर आ चुके हैं. ये भी वन ऑफ दोज मोमेंट्स है जब मैंने वो फोटो खींची है. Disqualified came out standing like this. Congratulations and salute to the teachers here who have put in their life and work into